Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language instructor and IELTS expert. And Alhamdulillah, it has been 20 years I have been in this field. And it has been more than 3 years I have been offering my online services. I am live on Zoom and I am from Karachi, and my team works from all over the globe. Some teachers are from Pakistan, some are living outside Pakistan, but they all are Pakistani and they all are working with me. And there are more than 30 faculty members who are working on this project, SKH Spoken English Online Course and SKH IELTS. बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ऐसा ना हो हम आपको पैसे दे दें और हम भाग जाए। तो अल्लाह ने बेटा तमाम इंसानों को अकल और शऊर दिया है। अब हर चीज को वेरीफाई किया जा सकता है जब से हमारी जिंदगी में इंटरनेट आया। So you can easily verify SKH Spoken English online course on Facebook, on Instagram, on YouTube, and you will realize the reality behind this project. So I welcome all of you, and today is my very first lecture with all of you. But before I start today's session, I request all of you like and subscribe this channel, and you will keep receiving updates here. And students who cannot afford this course, they normally watch my updated lectures on this channel. लेकिन याद रखें, keep it in your mind that YouTube channel just helps you to improve your knowledge. It does not help you to speak English fluently. For speaking English fluently, you must have two-way communication. देखिए हमारी जिंदगी में दो तरह के communications होते हैं। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन और एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। Two-way communication means that you listen to someone and someone listens to you. It means you also speak. And when you speak, you improve your spoken skills. YouTube is a one-way communication, which you just have to listen, but nobody will listen to you there. But here, when you are live on Zoom, you have a chance that you can also participate, you can speak. अगर आप अपने अपना व्हाट्सएप चेक किया हो तो आज आपके पास 3 डिस्कशन सेशंस भी हैं, और वो 3 डिस्कशन सेशंस की टाइमिंग्स 3 डिफरेंट टीचर्स के साथ होते हैं। सुबह में 11 से 12 भी है, उसके बाद आपके पास 4 से 5 है, और उसके बाद रात में 9 से 10 है। इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक जब लैंग्वेज क्लास हम शुरू करते हैं, जैसे आज हमारा पहला दिन है ऑफिशियली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जहन में बात रखते हैं, आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माय oral skills, I just want to improve my spoken skills. Yes, this is the course which really helps you to improve your spoken skills, and we provide you 80% such sessions where you speak, right? But you also have 2 days in a week grammar session which really helps you to improve your knowledge. अगर आप हफ्ते में 2 दिन यानी मंडे और ट्यूसडे अगर ग्रामर क्लास को फोकस करते हैं, इट रियली reduces, minimizes your mistakes, it improves your knowledge. और वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं हम जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो उनके लिए ग्रामर और स्पोकन क्लास सबसे आइडियल है। ठीक है, आपके पास 3 टाइमिंग्स पर हमारे सेशंस हो रहे होते हैं। हम सुबह 10 से 1 पढ़ा रहे हैं, दोपहर में 3 से 6 और रात में 8 से 11। मंथली फीस हमारी 3000 होती है, प्लस 1000 एडमिशन फी है। जो भी डिस्काउंट पॉलिसीज होती हैं वो हम व्हाट्सएप के ऊपर अनाउंस कर देते हैं। हर वीक के मुख्तलिफ हमारे डिस्काउंट चल रहे होते हैं, तो जो भी डिस्काउंट ऑफर है वो आपके पास आ चुकी होगी, आप उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, हमारा जो कोर्स 30% ऑफ के साथ होता है वो 7000 फॉर 3 मंथ्स है, जो हमारा अपडेटेड आजकल कोर्स चल रहा है उसके मुताबिक। मैं लेकिन फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, वी अनाउंस अवर डिस्काउंट ऑफर्स ओनली ऑन व्हाट्सएप, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, राइट? जैसे आजकल हमारी जो ऑफर चल रही है वो कुछ
कभी 5500 पे चलती है। अभी 11-11 आने वाला है, कोई एक बड़ी सुपर डुपर ऑफर आएगी। ठीक है ना। तो कोर्स कंटेंट आपके सामने है बेटा। बेसिक्स आप पढ़ते हैं, बेसिक्स आज से आपका पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। फिर आप टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। अच्छा, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स पढ़ाने का तरीकेकार ये होता है, वी डू नॉट टीच यू फर्स्ट टेंसेस देन मॉडल्स देन कंडीशनल्स, नो इट्स नॉट लाइक दैट। उसकी वजह मैंने बहुत रिसर्च की है, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। बच्चा टेंसेस पढ़कर समझता है ले भाई हो गया कोर्स तो पढ़ना। मैं टेंसेस से स्टार्ट करूंगा और टेंसेस पे ही एंड करूंगा, लेकिन बीच में मॉडल वर्ब्स और कंडीशनल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशनल, दीज आर द थ्री मेन टॉपिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश के अंदर पैसिव नहीं आता, नरेशन नहीं आती। जब आप बोलने की बात करते हैं ना, तो बोलने के लिए आपको टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, स्ट्रक्चर्स, मॉडल, फ्रेजेस चाहिए। वो हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। आप कम से कम दिन में 3 घंटे का सेशन अवेल किया करें, भले से सुबह 1 घंटा ले, दोपहर में 1 घंटा, रात में 1 घंटा, बट ट्राई टू अवेल 3 hours सेशन अ डे। दैट रियली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। हमारा जो ऑफिशियल, हम आपकी एक और आपको अच्छी खबर दे दें कि आपने जो फीस सबमिट करवा दी है, अभी तक उसका मीटर हमने चार घुमाया नहीं है। वो 1 नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली 6 नवंबर, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसमें सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर हमारे पास सीट्स अवेलेबल हुई तो हम 6 नवंबर को इस बैच में एडमिशन एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट दिस कोर्स ऑफिशियली फ्रॉम 1 नवंबर। यानी कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 3 महीने आप हमारे पास पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे फीस सबमिट करवा चुके हैं पिछले हफ्ते, कल रात में 3 बजे भी मेरे पास अपडेट्स आ रही थी, तो वो जहन में ये बात रखें, उनकी फीस स्टार्ट होगा, मीटर घूमेगा या तो 1 नवंबर से या 6 नवंबर से। तो यू गाइस आर लकी। ठीक है, 30% ऑफ चल रहा है, यानी कि हम आपकी 1 महीने की फीस माफ कर देते हैं जब आप लमसम पेमेंट करते हैं। कभी कभार हम आपको एडमिशन फीस की रियायत भी दे देते हैं, 6,000 फॉर 3 months, समटाइम्स 7,000 फॉर 3 months। तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा कि आपको इस हफ्ते कौन सी ऑफर मिली हुई है, उसके मुताबिक आप अपनी फीस सबमिट करवाइएगा। मॉर्निंग के आपके पास सेशंस देख लीजिए किस तरह से आप, जो क्लास सुबह में होती है वो दोपहर में भी है, वो रात में भी है। ग्रामर मंडे ट्यूसडे आपको मिलेगी दोपहर में, सुबह में, रात में। स्पोकन क्लास वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मिलेगी, सुबह में, दोपहर में, रात में। तीनों क्लासेस का सेम कंटेंट होगा। एक एडवाइस कर रहा हूँ, काम आने वाली है, सुन लीजिए। देखो, ये एक रेसिपी है बेटा जिस पे हम रिसर्च कर चुके हैं। अगर आप मेरी बातों को बिल्कुल फॉलो करेंगे, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो मेरी हर बात को फॉलो करती हैं, दे हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। सर ने कहा था कि अगर तुम्हारी ग्रामर बहुत कमजोर है तो दिन में अगर 3 ग्रामर के सेशंस हो रहे हैं, तुम डिस्कशन से ज्यादा अपनी ग्रामर को फोकस कर लो। इफ अगर कोई दिन, किसी दिन तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक आज तो बहुत मुश्किल सर ने डिस्कस किया था, आई कुडंट अंडरस्टैंड, उसी टॉपिक को दोपहर में भी अवेल कर लो, रात में भी, ताकि ऑन द सेम डे यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। स्पोकन क्लास हेल्प्स यू इन स्पीकिंग। वेन कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी, वो वेडनेसडे है, वो आपकी स्पोकन क्लास होगी। स्पोकन क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 0 लेवल। वो 0 लेवल से स्टार्ट होती है, और उसके अंदर सिर्फ आपको वही स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली भी स्टार्ट लिया है आप लोगों के साथ। आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो पिछले 2 महीने या 3 महीने से पढ़ रहा है। ठीक है, ये बात जहन में रखिए। डिस्कशन क्लास में भी हम किसी एक्स स्टूडेंट को या कोई फॉर्मर स्टूडेंट आपकी क्लास में नहीं होगा, सारे एक जैसे ही हो। तो आप लोगों को ये बात महसूस होगी, दे ऑल आर न्यू, और टीचर्स को भी ये बात पता होती है दैट स्टूडेंट्स आर न्यू। आप डिस्कशन सेशन 3 डिफरेंट टीचर्स के साथ ले रहे होते हैं, तो स्पोकन क्लास के अंदर आपके पास जो है वो, समटाइम्स यू हैव मिस बुशरा, समटाइम्स यू हैव मिस कोमल। आपके 2 स्पोकन टीचर्स हैं और 2 ग्रामर है। मिस बुशरा ऑल्सो कंडक्ट्स योर ग्रामर क्लास, मिस कोमल ऑल्सो कंडक्ट्स योर ग्रामर क्लास, आई ऑल्सो कंडक्ट योर ग्रामर क्लास, राइट। मैंने बहुत अच्छे से आपको टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दिया, कोर्स कंटेंट आपने देख लिया है। आज का पहला लेक्चर, बातें क्योंकि बहुत सारी है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय बुकलेट विच आई ऑलरेडी हैव फॉरवर्डेड यू। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है, मैं फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें बुकलेट नहीं मिली।
इस बुकलेट का आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और ये आपके कम से कम जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, दीज आर योर फोर सेशंस विद मी। और इन 4 सेशंस के अंदर स्केच फाउंडेशन लेवल सेकेंड एडिशन है ये हमारा। ये फाइनल बुकलेट अभी आप लोगों तक पहुंच जाएगी, कुछ बच्चों को मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ। I'm just sharing on your screen so that we can start today's session. Foundation. मुझे कंफर्म कीजिएगा आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास हैं। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन के ऊपर बुकलेट नजर आ रही। जी सर आ रही है, पर आपकी यस आवाज सर, नजर आ बिल्कुल रही नहीं आ रही है। मेरी यस मेरी सर, आवाज को क्या आ हुआ, रही है। खूबसूरत हो गई है, हल्की आ रही है या कट रही कट है? कट के आ रही है सर। अच्छा, कट कट कर आ रही है। सर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। बाकी और लोग भी गवाहियां देते हैं सर कट रही है, ताकि फिर मैं अपना इंटरनेट चेंज करूंगा। यस सर। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। टिक यस क्योंकि जितने यस सर, सर जितने कट लोगों के कट के पास आ रही सही आ है रही है, आपकी जितने आवाज। लोगों के पास सही आ रही है वो टिक लगा दीजिए, तो पता चल जाएगा कि मेरा इंटरनेट खराब है या आप लोग। आपके पास टिक का एक ऑप्शन होता है, इफ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, सो यू जस्ट सिंपली मार्क टिक। 3 गवाहियां आ चुकी हैं सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं इसे कट रही है, तो मैं आपको जोड़ देता हूँ मैं उसको। आई विल स्विच टू अनदर इंटरनेट कनेक्शन। सुबह में वैसे कटती नहीं है आवाज, आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू अनदर वन। अब सही है, नाउ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद द वॉइस। यस, नो प्रॉब्लम। ओके okay, most very important thing we are going to start today, that syntax. अच्छा, ये जो जितने पूरे नोट्स जितने भी हैं, ये देखें पेज नंबर 7 पर हूँ और ये 40 तक जा रहा है। मैं आज जितनी बातें कर रहा हूँ और आज से जितनी बातें मैं करूंगा, दे ऑल लिंक विद सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है बेटा अल्फाजों की तरतीब। हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। अल्फाजों की तरतीब, सिंटेक्स। Most of the students have this questions in their mind, sir, why are we weak in English? हम इंग्लिश में कमजोर क्यों हैं सर? Why are we weak in English? आप में से कितने लोगों का ये सवाल है जो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, और वो ये सोचते हैं सर, वी आर क्वालिफाइड, वी आर सिविलाइज्ड, वी हैव डन मास्टर्स, वी हैव डन बैचलर्स, सर स्टिल व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? व्हाई डू वी मेक मिस्टेक्स सर? व्हाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश? कितने लोगों के ये सवाल है? हैंड रेस करके बताइए। देखिए, हैंड रेस का ऑप्शन आपके पास होता है जूम के अंदर, तलाश कीजिए। 5 people want to ask this question, sir. Why? Tell us. Do you have any answer of this question? I do have an answer, and this answer will give you assignment as well as। आज के मेरे इस लेक्चर के साथ साथ आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा। उस असाइनमेंट
को सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा 1 हफ्ता होगा। हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं बेटा, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। वी हैव गॉट 2 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जब हम बात करते हैं कंटेंट वर्ड्स की, जब हम बात करते हैं कंटेंट वर्ड्स की, तो बेटा कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं विच यू हैव बीन लर्निंग सिंस योर स्कूल लाइफ। आपका बीच में कोई भी सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड, आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। जहां मेरी बात खत्म होगी फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपका जो सवाल हो वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ना हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड ना हो, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप कोई भी आपका सवाल बनता हो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, आप उसमें मैसेज लिख दें, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आप हैंड रेस कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली लिसन टू योर क्वेश्चन। आई लव क्वेश्चंस, राइट? But I'll always remember the discipline of the class that whenever you have question, you have to raise your hand. सर वो एक सवाल, सर जी 1 मिनट, सर जी बात तो सुने सर, सर ये नहीं किया करें, राइट? दिस ब्रेक्स माय रिदम। सो कंटेंट वर्ड्स आपकी बेटा वोकैबुलरी, और आपको नहीं यकीन कि आपके पास कितनी वोकैबुलरी, आपको खुद नहीं पता। इफ आई आस्क यू राइटिंग अ वेरी सिंपल वर्ड, अभी असाइनमेंट आया नहीं, आएगा, वेट फॉर दैट। इफ यू स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश वर्ड्स, एक छोटा सा असाइनमेंट लेना चाहें तो आप ले लें। राइट वर्ड्स विच यू नो। अब देखिए मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए आपको ये सब आते हैं। ही वेंट टू लाहौर, लाहौर तो सर प्रॉपर नाउन है, चले, विद हिज फ्रेंड बाय टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट इवेंट, बट आपको हर वर्ड का मतलब भी पता है। इवेंट कैंसल्ड, ही एंड ही केम बैक बाय ट्रेन ऑन संडे। You guys don't know that you know everything. आपको सब कुछ पता है, you already know everything. आपके पास कंटेंट वर्ड्स की जो नॉलेज है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वजह, आपके पास सिर्फ कंटेंट वर्ड्स ही है और वो आपकी वोकैबुलरी है। और मैं आपको एक अंदाजे के मुताबिक, यू हैव गॉट 5000 कंटेंट वर्ड्स इन योर मेमोरी विच यू नो। फॉर एग्जाम्पल देखें, ड्राइव, ईट, ड्रिंक, अंडरस्टैंड, स्टील, स्नैच, ब्रेक, थिंक, ऐसे कितने वर्ब्स हैं, और इसके इसी तरह से कितने नाउन्स हैं, कितने सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं विच यू ऑलरेडी नो। फिर भी आप अपने आप को अगर क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं कि मुझे कितना आता है, तो मैं आपसे 3000 वर्ड्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा, ऑक्सफोर्ड मोस्ट कॉमन 3000 वर्ड्स। आप उन वर्ड्स को बैठ के पढ़िएगा, आप कहेंगे सर आई ऑलमोस्ट नो ऑल दीज वर्ड्स। फिर प्रॉब्लम क्या है सर, व्हाट, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताई। स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आपको पता है हमारे पास जिन जो वर्ड्स नहीं है, जिसकी नॉलेज नहीं है, और जो हमें पता भी है कि दीज आर स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, ए एंड द, प्रपोजिशंस 40 है बेटा, सबको पता है, विद, टू, फ्रॉम, इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, पता है। स्मॉल, दीज आर द स्मॉल वर्ड्स विच आर एक्चुअली प्रपोजिशंस। कंजंक्शंस, 10 कंजंक्शंस तो आपके दिमाग में होंगे, 4 आपकी जबान पर भी होंगे। देखें, एंड, बट, व्हेन, सर जी सर ये तो हमें पता है, इफ, एज लॉन्ग एज सून एज, अंटिल, समटाइम्स, वेयर, व्हाट, हु, ये कंजंक्शन बन जाते हैं, ये तो पता है हमें सर। सो दैट, सो, येट, ये कंजंक्शन है। ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 है, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
हमें इनका इस्तेमाल नहीं आता। आप में से वो स्टूडेंट हैंड रेस कर दे, आपका याद रखिएगा, आज 20 साल बाद भी आपके टीचर से कोई ये बात कह दे तो वो कभी अपना हैंड रेस नहीं करेगा। How many of you can say that I am expert in articles? I am expert in preposition. I am expert in conjunctions. Sir, I bet you, I challenge you. आपके टीचर ने कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं की। 20 साल हो गए हैं और 20 साल में आज भी अगर मैं कुछ पढ़ता हूं तो वो prepositions। जब भी मैं कोई नई वोकैबलरी को याद करता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इस वोकैबलरी के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है। इट मीन्स दैट प्रपोजिशन नॉलेज हैज ऑलवेज हैज ऑलवेज हैज टू बी अपग्रेडेड ऑल द टाइम, हैज ऑलवेज टू बी अपग्रेडेड। Preposition knowledge, articles you always have to study. कंजंक्शंस चले लिमिटेड नॉलेज है, आप एक दफा काम कर ले ओके। आर्टिकल्स की मिस्टेक्स मैं आपको बता दूं काबिल कबूल हो चुकी है, ये बात जहन में रखिएगा। इफ यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इन आर्टिकल्स इट्स ओके, यू विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, फांसी नहीं मिलेगी। आ की जगह दा लगा दिया, दा की जगह आ लगा दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एन आप लोग सीख लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वाउल साउंड्स आ गई, आपने एन लगा दिया, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही रूल है। एन अम्ब्रेला, एन एग, एन इंकपॉट, एन आइसक्रीम। लिमिटेड नॉलेज है, ये हो जाता है, मसला नहीं है। आर्टिकल्स पे उबूर हासिल कर लेंगे, लेकिन आर्टिकल्स की किताब के आखिर का जुमला याद कर लेंगे। आर्टिकल्स रूल्स आर वेरी लूज। Articles rules are very loose, so they are acceptable. If you are making a mistake, it is acceptable in modern English. But preposition की किताब के आखिर का sentence सुन लीजिए। The more you study English language, the more you expose yourself to English language, the more you will understand prepositions. And prepositional mistakes are not mistakes, they are blunders. समझते? ब्लंडर का मतलब समझते? बड़ी मिस्टेक, जिस नाकाबिले कबूल। उसकी वजह मैं आपको ये भी बता दूं, उसकी वजह भी बता देता हूं। देखिए, अगर आपने किसी से पुट ऑन और पुट ऑफ, ऑन की जगह पर ऑफ और ऑफ की जगह पर ऑन अगर आपने लगा दिया तो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आपने किसी से कह दिया पुट ऑन योर शूज, वो जूते पहन के तैयार हो गया। आइए बात समझ, पुट ऑफ योर शूज, वो जूते उतार के बैठ गया। आपने ऑन और ऑफ लगाने से हालात बदल जाते हैं। अब आपने टर्न ऑन, टर्न ऑफ और टर्न डाउन। अब ये जो टर्न ऑफ है और ये जो टर्न डाउन है, आपने ऑफ की जगह पर डाउन लगा दिया, डाउन की जगह पर ऑफ लगा दिया, मतलब ही बदल जाएगा। टर्न ऑफ टीवी, टर्न ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा, जब वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम की जगह पर टर्न ऑफ टर्न डाउन दोनों आ सकते हैं, लेकिन टर्न डाउन का एक मतलब और भी होता है, किसी की ऑफर को रद्द कर देना। तो यानी कि प्रेपोजिशंस की गलतियां नाकाबिले कबूल है। कंजंक्शंस लिमिटेड नॉलेज है सर, आपको सिखा देंगे विद इन 2-3-4 डेज। सर का वादा है, सर आपको 2 से 4 लेक्चर्स के अंदर कंजंक्शंस की नॉलेज देने वाले हैं। मैंने शामिल कर दी है अपनी क्लासेस के अंदर प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स। आइए जरा अपनी आंखों से कुछ चीजें देखिएगा गौर से, और आज की मुझे बताइएगा आप लोग कि कभी रीड करते वक्त आज से पहले कभी जहन में ये बात आई काश हम ये देख लेते, सोच लेते। ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड। इसमें मैं कुछ चीजें आपसे कहता हूं, जैसे ये देखें, टू, ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर with his friend, with his friend, by PIA, to attend an article, important event, but the event cancelled and conjunction came back by train on Sunday.
मैं कहता हूं इसमें से सारे prepositions, conjunction, articles निकाल दो। बनेगा जुमला उसके बाद, I am going to Lahore with my son on Saturday by Daivo at 9 p.m. to attend an important मीटिंग। जरा एक लम्हे के लिए इसमें से सारे प्रपोजिशन, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस को निकाल दीजिए और देखिए आपका सेंटेंस क्या बन रहा है। आप कहेंगे हाय अल्लाह सर, यही तो हमारी गलतियां हैं, यही गलतियां तो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आप मुझसे, जो बच्चे आइल्स में अपेयर होना चाह रहे हैं आने वाले वक्तों में, वो मुझसे कहते हैं सर हमारी राइटिंग में मॉक टेस्ट लेकर हमें बता दें हमारी गलतियां क्या है। मैं कहता हूँ आप मॉक टेस्ट दिए बगैर मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव दीज एरर्स इन योर राइटिंग। कौन कौन सी मिस्टेक्स है आपके पास? यू हैव prepositional errors, you have articles errors, you have conjunctional errors। आपको अपनी राइटिंग की गलतियां मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैंने 20 साल जो मेहनत की है बच्चों पर, जो उनकी राइटिंग्स को एनालाइज किया है, हर बच्चे की गलती ये है, ये मान ले। अच्छा देखो, टेंसेस की गलती वक्त के साथ साथ, व्हेन यू हैव ज्वाइंड अ वेरी फॉर्मल लैंग्वेज कोर्स, आपको मैं 3 बात की गारंटी दे रहा हूँ, आप टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनर्स में 3 महीने बाद अपनी राइटिंग में गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब मेरा कोर्स मुकम्मल होता था, मेरी एक आदत थी, शायद वो मेरे पास बहुत सारे 2004, 5, 6, 7, 8 के वो शायद रिव्यूज आज भी कहीं पर मेरे पास रखे हुए हैं, बेगम ने कहीं छुपा दिए हैं। तो मैं जब क्लास मुकम्मल होती थी ना, एक 6 महीने का कोर्स मैं मुकम्मल करवाता था, मैं स्टूडेंट से कहता था लिखो व्हाट हैव यू लर्न इन दिस कोर्स सो फार। अच्छा, फिर मैं उनसे एक लिखवाता था, फिर मैं कहता था आओ आज आखिरी क्लास में एक प्रेजेंटेशन भी दो, व्हाट हैव यू अचीव सो फार इन दिस कोर्स। तो मैंने 2 कॉमन प्रॉब्लम्स नोट करी इस 6 महीने बाद भी। जब एक बच्चा लिख रहा है तो वो क्या गलतियां कर रहा है, उसके टेंसेस सुधर गए, मॉडल्स सुधर गए, कंडीशनल सुधर गए, लेकिन वो अभी भी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस में बेशुमार गलतियां कर रहा है। तो आज पहला लेक्चर ही मैंने किस पर डिजाइन कर दिया है? आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पर। कि आपको पहली क्लास में, पहले लेक्चर में मैं उस चीज के बारे में प्रिपेयर कर रहा हूं, उस चीज का असाइनमेंट दे रहा हूं जो मुझे पता है ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपके ब्लड के अंदर रहेगी और ये वायरस हमेशा रहता है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन आपको लेते रहनी है। आप हर महीने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की वैक्सीनेशन करवाते रहिएगा, बिकॉज ये 2 टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ा दी और आपने पढ़ ली और अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। नो, यू ऑलवेज नीड गुड सपोर्ट ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। तो मैं आज आप लोगों को आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस का एक असाइनमेंट दे रहा हूं। मैं आपको इसके नोट्स भी फॉरवर्ड करूंगा, मैं आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन भी दूंगा, और मैं इस आर्टिकल्स पर आपको एक टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। और मैं प्रेपोजिशंस पर आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर तकरीबन 12 से 15 एक्सरसाइजेज है। हर एक्सरसाइज में 25 सेंटेंसेस है जिसमें आपको प्रेपोजिशंस लगाने हैं, विद आंसर शीट्स अवेलेबल है। आपको रोजाना एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी प्रेपोजिशंस की, ठीक है। मैंने जिस तरह से उसमें गाइड किया प्रेपोजिशंस के लेक्चर में, आप पहले लेक्चर को सुनिएगा और जिस तरह से सर ने उसमें गाइड किया फिर आप उस तरह से फॉलो कीजिएगा। आर्टिकल्स आप पहले कर लीजिएगा, फिर प्रेपोजिशंस, बिकॉज आर्टिकल्स विल टेक ओनली 1 डे, प्रेपोजिशंस विल टेक ऑलमोस्ट 12 डेज विद प्रैक्टिस। कंजंक्शन आपके कोर्स में इसी बुकलेट में आ रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपके 4 लेक्चर के बाद जो 5वां लेक्चर है वो आप मेरा लेक्चर होता है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो मैं आपसे वादा करता हूं मुझे 3 हफ्ते दे दीजिए, मैं आपके ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह फौलादी कर दूंगा। फौलादी एकदम आयरन वुमेन हो जाएगी आप। आपकी अगर बेसिक्स अच्छी हो जाए ना, आप कभी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे। ये हमारे टीचर ने भी हमसे कहा था 20 साल पहले, that improve your basics. So we are very much good at basics. So we also want our students to be good at basics. लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती हैं। आप मेरे साथ 4 लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि
कि आपको बेसिक्स आती है, क्योंकि ये जो बेसिक्स मैंने डिजाइन किए कि वो उन स्टूडेंट्स को देखकर डिजाइन किए जो माशाल्लाह एमए इंग्लिश है, एमए टेफल है, टीचर्स हैं। क्योंकि मैं 200 टीचर्स की वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की है, फिजिकल इंग्लिश के टीचर्स बैठे हुए 200। तो उनसे जब बेसिक के सवाल करते हैं वो उनको वो नहीं आते। तो आज इंशाल्लाह आप कई लाखों स्टूडेंट से बेहतर होने जा रहे हैं। पहला लेक्चर, पहली बात मैंने आज के सेशन में आपसे क्या की है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ, फिर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। Content words versus structural words. Content words, we already have good knowledge of this and this is our actually vocabulary. लेकिन इस vocabulary का हम क्या करें? आप देखेंगे इस vocabulary को जोड़ता कौन है, इन सारे वर्ड्स को जोड़ता कौन है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को जोड़ने की जिम्मेदारी है स्ट्रक्चरल वर्ड्स की। स्ट्रक्चरल वर्ड्स की अगर मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर एक्चुअली मीनिंगलेस। Structural words are actually meaningless, but they make your sentence meaningful. Structural words की अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा अभी कि क्या आपने आज से पहले कभी भी रीड किया हो कोई भी पैराग्राफ, कोई भी एक्सट्रैक्ट, तो क्या आपने इस बात को फोकस किया कि यहाँ कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रेपोजिशन, कौन सा कंजंक्शन मेरे इन वर्ड्स को जोड़ रहा है? अगर कभी फोकस किया है तो टिक लगा दीजिए, अगर फोकस नहीं किया तो क्रॉस लगा दीजिए। सर इन छोटे लोगों को, वर्ड्स को हमने कभी फोकस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके पास क्रॉस का ऑप्शन होता है, देखिए आप तलाश कीजिए, रिएक्शंस में जाइए तो आपके पास वहां क्रॉस का ऑप्शन होगा, आप क्रॉस लगा दीजिए। ये 20 साल की रिसर्च है कि लोग नहीं देखते, क्योंकि कोई लोग क्यों नहीं देखेंगे, उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है। हम रीड करते थे स्कूल लाइफ में, हमारे रीडिंग में ये कहा जाता था डिफिकल्ट वर्ड्स निकालिए, और डिफिकल्ट वर्ड्स में क्या होता था बेटा? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कभी किसी ने, टीचर ने ये नहीं कहा चले आज एक काम करते हैं, आप ये चैप्टर पढ़िए और इसमें से आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस निकालिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर आज हम अपने रीडिंग का फोकस बदल दें कि हम पढ़ते वक्त हमें कौन समझ तो आता है, व्हेन वी लिसन वी अंडरस्टैंड, व्हेन वी रीड वी अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली व्हाट वी डोंट फोकस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। और यही वजह है वी गेट स्टक, यही वजह है वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे आइडियाज को जोड़ते हैं और ये वर्ड्स हमें आते नहीं है, तो हमारे वर्ड्स जुड़ते नहीं है। जब वर्ड्स नहीं जोड़ेंगे तो फ्लुएंसी तो आएगी नहीं। तो जो लोग कहते हैं हमें ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने हैं, स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, तो बेटा स्पीकिंग और स्किल्स आपके तो इम्प्रूव जब होंगे ना जब आपके पास इन चीजों की नॉलेज अच्छी होगी। अदरवाइज यू विल कीप मेकिंग ब्लंडर्स इन योर स्पोकन। और मेरी आदत नहीं है जब मैं आप लोगों से व्हाट्सएप पे बात करता हूँ कि मैं आपकी राइटिंग्स पर, आपकी स्पीकिंग पर तनकीद करूँ। मैं कहता हूँ खुद अपने अंदर झांक लो, खुद अपनी राइटिंग्स को एनालाइज कर लो, तुम को मेरी बातें मैच होती नजर आ जाएंगी। मेरे सारे लेक्चर्स आपकी नॉलेज से सिंक हो जाते हैं एंड यू ऑलवेज से यस सर यू आर राइट, वी हैव दीज प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम्स को काउंटर अटैक करना है आज, ठीक है ना? आज रात को आपके पास आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन के लेक्चर्स आ जाएंगे, उनकी पीडीएफ्स आ जाएंगी, उनके लेक्चर टेस्ट का लिंक आ जाएगा। टेस्ट आर्टिकल्स का सैटरडे को रख लेते, ठीक है? सैटरडे को आर्टिकल्स का टेस्ट रख लेते हैं। और प्रेपोजिशंस के ऊपर मैं टेस्ट नहीं रखता, क्योंकि प्रेपोजिशंस का टेस्ट लिया नहीं जाता, ठीक है? तो लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भी भेजूंगा, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। आगे चलते हैं। सर मैं एक सेंटेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, करें बेटा? आई डोंट माइंड। तो जब हम एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, आपके माइक के कंट्रोल्स आपके पास है बेटा, जब एक सेंटेंस क्रिएट होता है तो बताइए हमें कितने, कम से कम कितने वर्ड्स की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जीरो से पढ़ाता हूँ, देख लो मैं ये जीरो लेवल पे खड़ा हूँ, मैं सेंटेंस के ऊपर अब बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले लेटर्स आते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाता, फिर मॉन्टेसरी की क्लास हो जाएगी, ए फॉर एप्पल। बताइए, आई वॉन्ट टू मेक अ सेंटेंस। आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपका नाम लूंगा ताकि लोग आपके सवाल के जवाब को सुने। यस सादिया, एक सेंटेंस क्रिएट करने के लिए
हमें कम से कम कितने वर्ड्स की जरूरत हो सकती है? यस, मानू। सर एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3। मानू क्या कहती है, तूबा क्या कहती है? सर 3 वर्ड्स 3 वर्ड्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब। जैसे मैंने कह दिया आई लव पाकिस्तान, सर ये सेंटेंस बन गया। तो फिर अगर 3 सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं आप लोग, 3 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ उरूसा इन द क्लास। 3 वर्ड्स हो गए, बन गया सेंटेंस। एट द बस स्टॉप, ऑन द रूफ, ऑन द वे, बिफोर टेकिंग क्लास। बन गया वही सेंटेंस। सर मैक्सिमम 5 वर्ड्स। बिफोर टेकिंग क्लास 3 वर्ड्स से भाई जुमला बनता है, भी आपने सर कहा। वो नहीं। इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी कि जरूरी नहीं है कि 3 वर्ड जो सर हम बोले या लिखें वो हमारा सेंटेंस क्रिएट भी कर दें। सही है, सही कह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि 3 वर्ड्स अगर हम लिख दें तो वो जुमला जी। भी बन जाए, उसको हम सेंटेंस का दर्जा दे दें। सर हो सकता है कि वो कुछ और चीज हो, और वो चीज, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। A phrase is a फ्रेज। group of words which gives us some meaning. फ्रेज क्या होता है कि आपने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया और वो आपको एक कुछ मीनिंग्स दे रहा है, बट इट डज नॉट गिव यू कंप्लीट मीनिंग। इट गिव्स यू इनकम्प्लीट मीनिंग्स और इट गिव्स यू सम मीनिंग। इन द क्लास। इन द क्लास क्या सर? क्लास में क्या? क्लास में बच्चे खेल रहे हैं, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं। इन द क्लास क्या सर? एट द बस स्टॉप। एट द बस स्टॉप क्या सर? कोई मर्डर हो गया है, कोई क्या हो रहा है सर? लोग इंतजार कर रहे हैं बस का। हमें बात सर पूरी बताइए ना सर, हम समझ नहीं आ रही सर। ऑन द रूफ, छत पर क्या? छत पर कौन? सारा छत पर है। छत पर बारिश हो रही है, छत पर क्या सर? बताइए ना सर। इसका मतलब ये है कि आप फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ। और इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, ये फ्रेज की निशानी है। A phrase is a group of words that functions as a single unit within a sentence. ये सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल जरूर होता है, जैसे she called me at the bus stop। इसमें ये एक सेंटेंस का एक यूनिट होता है, जिसका उस यूनिट का भी एक नाम होता है। देखिए लिखा हुआ, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, आसान जबान में, which means it does not express a complete thought on its own। ये खुद से एक मुकम्मल मीनिंग नहीं दे सकता। और फ्रेज 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। देखिए हर बच्चे की नॉलेज में ये है, आप मुझे ओके कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। ए, आ, एन और द, हर बच्चा ये जानता है ये आर्टिकल है। आ, एन और द, हर बच्चा ये जानता है ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। वी हैव गॉट 3 आर्टिकल्स, ठीक है। इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, फॉर, ये प्रपोजिशंस कहलाते हैं। ये सब बच्चे बातें कम से कम ये बात जानते हैं। टिक लगा दीजिएगा, ये फीडबैक्स देते रहा करें। कहीं पर क्रॉस लगता है तो फिर मुझे अलर्ट हो जाता है, नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं आता। इन, ऑन, एट, तो बेटा उठो जाओ। तुम्हें ये नहीं पता इन, ऑन, एट, फॉर, आफ्टर, बिफोर ये प्रपोजिशंस होते हैं, छोटे छोटे जो ये वर्ड्स होते हैं। जी सर। नहीं पता तो आज याद कर लो, लिख लो अपने पास कि ये प्रपोजिशंस है। ठीक है, लिख लो अपने पास प्रपोजिशंस। 6 प्रपोजिशन तुम्हारे मेमोरी में चले गए, जो एक क्रॉस लगा उस बच्चे के जहन में, आज बैठा लो। आज ये पहला और आखिरी मौका है कि ये पता चल जाए, हाँ ये प्रपोजिशंस होते हैं। अब उस आर्टिकल के बाद तुमने एक नाउन लगा दिया, ऊपर देखना नाउन फ्रेज बनाने जा रहे हैं। तुमने आर्टिकल के बाद यानी आ, एन और दा के बाद तुमने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया, तो ये बन जाता है नाउन फ्रेज।
और अगर तुमने इन, ऑन, एट के बाद कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये बन जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाम याद कर ले, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर आपने इन, ऑन, एट, जैसे आपने कहा इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, प्रेपोजिशन को जोड़ा, एक आर्टिकल लगाया, एक नाउन लगा दिया, बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। आपने आ लगाया, एन लगाया, दा लगाया, नाउन लगा दिया, उसके बाद एडजेक्टिव लगा दिया, फिर नाउन लगा दिया, तो बन जाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का जो स्टार्ट होता है वो आ, एन और दा से हो रहा होता है। आसान तरीन जबान में सिखा रहा हूं। आगे चलते हैं, हमने फ्रेज को सीख लिया, अब हम जा रहे हैं क्लॉज की तरफ। क्लॉज क्या होता है? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. अब आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है। लोग कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब आने से जुमला बन जाता है। मेरा सेंटेंस सुनिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये मेरा सेंटेंस है। मैं इसको सेंटेंस कह दूं, इफ शी कम्स लेट, क्या ये, इसको मैं सेंटेंस का दर्जा दे दूं? इफ शी कम्स लेट, हाँ सर देखे ना, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं ऑब्जेक्ट भी लगा देता हूँ, इफ शी कॉल्स मी, हाँ शी भी आ गया, कॉल्स भी आ गया, मी भी आ गया। कह दूं, दे दूं उसको दर्जा सेंटेंस का? लगाओ टिक या लगाओ क्रॉस, दे दूं दर्जा सेंटेंस का? नहीं सर, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं हो रही है। सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है, सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस ये कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। लेकिन यहां पर अभी हम सेंटेंस पर पहुंचे ही नहीं, अभी हम सेंटेंस पर नहीं पहुंचे, अभी हम आ रहे हैं क्लॉज पर। और जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज हमारे पास दो तरह के होते हैं, याद कर लें, बड़ी बुनियादी बात है ये। एक होता है इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, और एक होता है डिपेंडेंट, मोहताज। जब मैं कहता हूं मोहताज तो फिर ये मोहताज, ये जुमले हैं, सुनिएगा। इफ शी कम्स लेट, when she comes, as soon as she comes, until she comes। जब मैंने इस तरह के वर्ड्स लगाए, if, when, until, as soon as long as, तो याद रखिएगा कि मेरा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नहीं है, मैं इसको कहूंगा ये मेरा क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट मोहताज। किसका मोहताज है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का। सर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अकेले आ जाए, शी विल किल यू, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी राइट्स अ लेटर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी वुड इन्फॉर्म मी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है उसको किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है। देखिएगा, अब आपके पास आ रहा है सेंटेंस। याद करें बचपन की बातें। A sentence is a group of words which gives us complete meaning। ये बात सब जानते हैं। A sentence normally ends on full stop। अगर आप देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपके सामने आ गई है। अगर आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपका सेंटेंस का जो एंड होता है वो फुल स्टॉप पर होता है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या फिर क्वेश्चन में WH वर्ड आ रहा है उसमें, तो देखिए आपके सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। सबको याद आ रही है बातें? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद देखिए अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव, तो इन सेंटेंसेस का इख्तिताम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर भी हो रहा होता है। आप इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको याद आ रहा होगा, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस।
exclamatory sentences, sudden expressions. हाय अल्लाह हम फिर मैच हार गए, अल्लाह डी हम मैच जीत गए. ऑप्टेटिव, अल्लाह करे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो. मे यू हैव मैनी मोर, तुम्हारे सारे ख्वाब सच हो जाए. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. आई होप यू एंजॉय योर वेकेशंस. दुआइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मैंने क्लास 2 का लेक्चर रिपीट करवा दिया आज आप लोगों को. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आखिरी बात समझ, आज की आखिरी बात. मैंने आज आपसे क्या डिस्कस किया? मैंने आपसे डिस्कस किया कि बताइए, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. बताइए ये सेंटेंस है, आप चैट में लिख सकते हैं. बताइए ये डिपेंडेंट क्लॉज है. बताइए ये प्रपोजिशनल फ्रेज है. बताइए ये नाउन फ्रेज है. दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. आप सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सेंटेंस है, एक ही बात है. ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है. आपके माइक्स भी ऑन हो गए, आप माइक्स में भी बता सकते हैं. हैंड रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. यस, पहला बताइएगा. यस, मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके ऊपर एक्सरसाइज आपके पास आती है ना. अब आप मुझे बताएंगे कि जो पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, ये सेंटेंस है या ये डिपेंडेंट क्लॉज है? सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता है, इट गिव्स यू अ कंप्लीट थॉट. यस, शीमा बताइए. सर ये सेंटेंस है. इट इज अ सेंटेंस. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है अंडर द क्यूरियस लिटिल किटन. द से स्टार्ट हो रहा है. शीमा बताइए क्या है ये? जी कौन सा? नंबर 2 डॉट करके लिखेंगे तो मैं चैट में तो समझ जाऊंगा. तुबा क्या लिखा है आपने? किस 2 डॉट करके जवाब लिखिएगा. क्यूरियस, द क्यूरियस लिटिल किटन. द क्यूरियस लिटिल किटन क्या है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, नाउन फ्रेज है. एक्सलेंट मानूर. यस सादिया. माइक ऑन हुए में बेटा आपके. आप माइक पे टैप करेंगी तो माइक ऑन हो जाएगा. ऑन नहीं है माइक? यस सादिया. सर ये फ्रेज है. इट्स द क्यूरियस लिटिल किटन. इट्स अ फ्रेज. लेकिन पूरी बात बताइए, नाउन फ्रेज कहूं या प्रपोजिशनल फ्रेज कहूं? दा से स्टार्ट हो रहा है. नाउन फ्रेज है सर, नाउन फ्रेज है. इट्स अ नाउन फ्रेज. अंडर द ब्रिज. अब बताइए ये सर कौन सा? नाउन फ्रेज. अंडर द ब्रिज. अंडर द ब्रिज, ये कौन सा फ्रेज? Prepositional phrase. प्रपोजिशनल. Prepositional. When the sun sets. When the sun sets, कौन सा फ्रेज? Noun phrase. नाउन. इट्स when देखो इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और वर्ब भी आ रहा है. तो फ्रेज में तो ना सब्जेक्ट आता है ना वर्ब. इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होता तो बेटा इसके आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज के आखिर में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है. सोचो. अब बचा एक ही डिपेंडेंट क्लॉज, मोहताज. अधूरी भी लिखते ना, जब सूरज डूबेगा तो क्या होगा? तारे जागेंगे. When the sun sets. The sky is clear and blue. क्या है ये? The sky is clear and blue. Yes. Dependent clause. It's, आप इसको, it's a इंडिपेंडेंट.
इंडिपेंडेंट क्लॉज ये भी कह सकते हैं। इट इज अ Independent कंप्लीट clause. सेंटेंस। देखो आसान सी बात है, सेंटेंस को पहचानने का एक ही तरीका है, आखिर में फुल स्टॉप, आखिर में क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ Yes, sir. एक्सक्लेमेशन। लेकिन बाकी आप देखें कुछ जितने भी सेंटेंसेस आपको क्लॉजेस जहां नजर आएंगे, वहां पर कोई भी आपको फुल स्टॉप, फ्रेज और क्लॉज आखिर में क्या नहीं लेगा, कभी भी ना फुल स्टॉप लेगा, ना क्वेश्चन मार्क लेगा, ना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लेगा। हाँ, फ्रेज के बाद हम कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। यस, क्या आप खुद से ये मार्क कर लेंगे, ठीक लिख है लेंगे सर। अपने पास कि ये क्या है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है, और लिखने के बाद ईमानदारी से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, हो जाएगा ये काम। जो पढ़ाया उसके Yes, sir. हो ऊपर एक जाएगा. एक्सरसाइज आज की Yes, तारीख में sir. सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिस आयशा आ चुकी है आपकी डिस्कशन टीचर। आई एम साइनिंग ऑफ। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल मैं पढ़ाऊंगा Sir. वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ से मेरी कल की क्लास का आगाज होगा। यही लेक्चर दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो मुझे 3 बजे ज्वाइन कीजिएगा और रात में 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओवर टू मिस आयशा। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.